Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ये जनजातीय गौरव दिवस? तो याद रखेंगे महाराजा झारखंड में इसको ऑब्जर्व किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस को। करेक्ट। एंड ये अभी क्यों प्रेवलेंट है, अभी हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन की विजिट पे थे टू झारखंड, जो कि है 15 से लेके 16 नवंबर तक। एंड यहाँ पर ये इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एन इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था खुंटी झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे 15 नवंबर को जो 15th ऑफ नवंबर होता है, ये फाउंडेशन डे भी होता है, फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड। ठीक। तो 2 चीज़ याद हो गई, जनजातीय गौरव दिवस कहाँ पर? झारखंड में। एंड 15 नवंबर को हम फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड ऑब्जर्व करते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए यहाँ पे 7200 करोड़ रुपए के। करेक्ट। ये जो आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे रेल, रोड, एजुकेशन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स में रहेंगे। इसी के साथ साथ पीएम मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को भी लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ जो 3rd जनजातीय गौरव दिवस के दौरान जो 15वीं इंस्टॉलमेंट थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई, रिलीज की गई। ठीक। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर रहेंगे, रांची कैपिटल रहेगी झारखंड की। करेक्ट। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, बेतला नेशनल पार्क। अगर इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल जरा बताओ इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? वो है आपकी अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है विद 8.4 गीगावाट ऑफ जनरेशन। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ उस पोर्ट का नाम बताओ जो कि 16.1 मिलियन टन्स गुड्स को, कार्गो को यहाँ पे हैंडल करता है। और ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है जो कि 16.1 मिलियन टन्स कार्गो को हैंडल कर रहा है। तो पोर्ट का नाम क्या रहेगा? मुद्रा पोर्ट। ठीक। फिर भारत आटा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था एक, भारत आटा। ये भारत आटा इनिशिएटिव किया है बेसिकली अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर के लिए। राइट। अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर आटा, गेहूं का आटा प्रोवाइड कराने के लिए एट अ अफोर्डेबल रेट, ये भारत आटा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट को-चेयर्ड? तो याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं पहली ऑस्ट्रेलियन इंडियन AI
ESC, ऑल ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट। ये पहली मीट थी इंडिया की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, इनके द्वारा। एंड जेसन क्लैर ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई थी, पहली ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट। करेक्ट। ये मीट हुई कहाँ पर थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो IIT गांधीनगर गुजरात में हमारी मीट हुई थी, 6 नवंबर को हुई थी 2023 में। एंड यहाँ पर हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर हो सके, नॉलेज शेयर हो सके, डाटा शेयर हो सके, रिसर्च शेयर हो सके। करेक्ट। एंड कॉर्पोरेशन एक दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बना रहे, इसीलिए ये अभी मीट हुई, ऑस्ट्रेलियन इंडियन एजुकेशन स्किल काउंसिल मीट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, 2 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस खोल रहे हैं। हम जानते हैं पहली यूनिवर्सिटी जो आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो क्या थी, डेकिन यूनिवर्सिटी। अब एक और यूनिवर्सिटी आ रही है, वो है वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। और ये दोनों कहाँ पर होंगी, ये गांधीनगर जिफ्ट सिटी में इनको खोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। कैनबेरा यहाँ की कैपिटल रहेगी और करेंसी रहेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ था, अभी भुवनेश्वर में हुआ। और कौन सा एडिशन था, तो इसका 10वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया था कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल का। देन इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे, अभी हमने देखा 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, एक तो है वोलोंगोंग एंड डेकिन यूनिवर्सिटी, ये दोनों अपना कैंपस खोलेंगी कहाँ पर, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। एंड इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एनिमल हेल्थ, इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई अभी, 33rd कॉन्फ्रेंस रहेगी। ये वर्ल्ड एनिमल हेल्थ की 33rd कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाली पहली स्टेट इंडिया में कौन सी बन गई है, वो है झारखंड। राइट, झारखंड वो पहली स्टेट बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस एक्स। ये एक इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडस एक्स। राइट, अब इसका नाम जैसे देखो, इंडस एक्स, इंडिया और यूएसए। करेक्ट, इंडिया और यूएसए के बीच में ये आपका एक डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम। इसकी पहली इन्वेस्टर्स मीट हुई, कब हुई, 8 नवंबर को हुई। कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। करेक्ट। एंड इस मीटिंग के दौरान ही हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम डिफेंस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड डिफेंस कॉरपोरेशन के ऊपर यहाँ पे डील की गई है इस इंडस एक्स के अंडर। एंड यहाँ पर हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बढ़ावा दिया जाएगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ पे शिफ्ट की जाएंगी, वो इंडिया में लगेंगी। और इससे क्या होगा कि जो यूएसए का पैसा है वो इंडिया में यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। इंडिया में इन्वेस्ट होगा तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी एंड रोजगार मिलेगा, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। करेक्ट। सो कमिंग बैक, इंडस एक्स ये क्या है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक, ये इसकी पहली मीट हुई थी 8 नवंबर को ही न्यू दिल्ली में हुई। करेक्ट। तो ये इंडस एक्स किस किस के बीच में है, इंडिया एंड यूएसए। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडेक्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पहला इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इन्वेस्टर्स मीट 8 नवंबर को न्यू दिल्ली में। राइट, और ये अपनाया कब गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएसए। एंड इस इनिशिएटिव का एम क्या रहेगा कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिक पार्टनरशिप करनी हमें, और डिफेंस में जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ावा देना है बिटवीन दीज 2 नेशन। और हम जानते हैं इंडिया में मेक इन इंडिया के अंडर जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इक्विपमेंट्स, जो टेक्नोलॉजी हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब वो इंडिया में ही हम बना रहे हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो बच जाती है, खर्चा बच जाता है। इनफैक्ट हम उसी टेक्नोलॉजी को अब दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे एक गुरुकुल इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज रहेगी गुरुकुल की, जिसका एम रहेगा जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको नेविगेट करना एंड डिफेंस इकोसिस्टम को बनाना बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। करेक्ट। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे
एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं या फिर नॉट एजुकेशनल, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए फ्रॉम बोथ द साइड्स इसको लॉन्च किया गया था, गुरुकुल इनिशिएटिव को। नेक्स्ट बात करते हैं उज्बेकिस्तान की समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमीज एंड सर्विसेज और इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ ताकि इन दोनों के बीच में जो एकेडमिक अलायंस है वो उसको बढ़ाया जा सके, जो कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच में उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, जो फैकल्टीज़ हैं उनका एक्सचेंज हो सके, जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करा जा सके, ताकि एक दूसरे के कल्चर को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकें। बच्चे अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कैसे काम होता है, कैसे वहाँ का वर्क कल्चर है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। और एक दूसरे के साथ जाएंगे तो कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, राइट। सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये बच्चों के लिए। इसीलिए समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज जो कि उज्बेकिस्तान की है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है, दिल्ली में, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो कि आपकी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन रहेगा इस वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का, जिसमें बताया कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या फिर हम बोले क्लीन एनर्जी सेक्टर है, इसमें जो जॉब्स की जनरेशन हो रही है ना, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जॉब्स जो कि फॉसिल फ्यूल्स के सेक्टर में जनरेट की जा रही हैं। आई रिपीट, जो क्लीन एनर्जी सेक्टर में जो जॉब जनरेट हो रही हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जॉब्स जो कि आपकी फॉसिल फ्यूल के सेक्टर्स में जनरेट की जा रही हैं। यहीं पे अगर हम डाटा देखें तो 4.7 मिलियन जॉब्स यहाँ पे जनरेट की गई बिटवीन 2019 से लेकर 2022 के बीच में इन क्लीन एनर्जी सेक्टर अलोन, ठीक है। फिर यहीं पे अगर IEA की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे, डॉक्टर फाती बिरोल। हेडक्वार्टर रहेगा इसका पेरिस, फ्रांस में। एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1974 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया UPI लाइट फीचर फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स। अब ये UPI लाइट, इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये आपका UPI की जो पिन की रिक्वायरमेंट होगी ना, यहाँ पे पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड इवन आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, तो 500 रुपये आपकी ट्रांजैक्शन की ईजी हो पाएंगे विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर मोबाइल फोन, राइट। तो ये UPI लाइट फैसिलिटी लॉन्च की गई थी, 2022 में लॉन्च की गई थी, RBI के द्वारा लॉन्च की गई थी, राइट। फेडरल बैंक ने भी अब इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, 500 रुपये तक की आप पेमेंट एक बारी में कर सकेंगे पर ट्रांजैक्शन। इसमें आपको UPI का पिन भी नहीं डालना एंड एज वेल एज आपका इंटरनेट ना भी हो तब भी आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। फिर जो इस पर दिन की कैपेसिटी है, जो एक लिमिट है, वो है 4000 रुपये। और एक बारी में आप अपने UPI लाइट बैंक में या UPI लाइट जो अकाउंट होगा उसमें एक बारी में कितने मैक्सिमम पैसे रख सकते हैं, 2000 रुपये, ठीक। और दिन में 4000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम सेकेंड यूनिकॉर्न ऑफ 2023। 2023 का इंडिया का सेकेंड यूनिकॉर्न कौन बन गया है, तो पहला कौन बना था, वो है ज़ेप्टो। ये एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ज़ेप्टो ये पहला यूनिकॉर्न बन गया 2023 का इंडिया का। और अब जो सेकेंड यूनिकॉर्न बना है वो है इनक्रेड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये पेरेंट कंपनी ऑफ फिनटेक स्टार्टअप इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ये सेकंड इंडियन स्टार्टअप बन गया जो कि एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कौन होते हैं, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर जाती है, वो एक स्टार्टअप कहलाता है। अभी रिसेंटली इनक्रेड होल्डिंग्स ने 500 करोड़ का राउंड रेज किया इन द सीरीज D ऑफ देयर इक्विटी फंडिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, फैमिली ऑफिसेज, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इन सब ने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन सी सिटी बनी या कौन सी स्टेट बनी जिनने अभी 22 लाख दिए दिवाली के टाइम पे जलाए, एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया, इन्होंने अपना पुराना प्रीवियस रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, तो वो है अयोध्या, राइट। वो है अयोध्या जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। फिर इसी के बाद एक आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ ये अभी लॉन्च किया गया था। ये एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर फूड सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च किया गया ताकि ज़ीरो हंगर की बात की जा सके। किस स्टेट में, मेघालय में, राइट। मेघालय में
फूड सिक्योरिटी कैंपेन को ये लॉन्च किया गया ताकि जीरो हंगर की बात की जा सके। देन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, 15 से 17 नवंबर के बीच में हुआ। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई? ये हुई जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में। एंड ये 10वां एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग थी जकार्ता इंडोनेशिया में जो हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, ये वो 9 फर्म्स में से हैं जिनको भी MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड किया गया। MSCI क्या होता है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। आई रिपीट, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये MSCI में ऐड हुए 9 इंडियन स्टॉक्स रहेंगे। करेक्ट, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। करेक्ट, मतलब हम कहें पेटीएम को ऐड किया गया। परसिस्टेंट सिस्टम्स, EPL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स एंड टाटा कम्युनिकेशंस को यहाँ पर ऐड किया गया था। कोई इंडियन स्टॉक्स को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि इनको ऐड ही किया गया है। और अब जो टोटल नंबर हो गया है इंडियन स्टॉक का इन दिस इंडेक्स वो है 131। इस MSCI के इंक्लूजन से हम देखेंगे इंडिया में $1.5 बिलियन की पैसिव फ्लो देखने को मिलेगा टू इंडिया। एंड जो मैक्सिमम शेयर इनफ्लो रहेगा विल बी लेड बाय इंडसइंड बैंक एट $290 million, followed by Suzlon Energy at $264 million, Persistent Systems at $254 million. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। हम बात कर रहे हैं 15वें एडिशन ऑफ फिकी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की। एंड ये अवार्ड्स अभी कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। ये अवार्ड दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर। फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो ये अवार्ड जनरल अवार्ड इज गिवन ऑन 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे एक्सीलेंस इन पेशेंट सर्विस डिलीवरी, एक्सीलेंट इन पेशेंट सेफ्टी एंड केयर, एक्सीलेंस इन कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। तो ये 5 कैटेगरीज में यहाँ पर ये जनरल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड फिकी ऑल्सो गिव्स जूरी बेस्ड स्पेशल अवार्ड्स टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। अगर मैं फिकी की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? सुब्राकांत पांडा जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1927 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। राइट। फिर इसी के अलावा अगर कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल ज़रा बताओ वेलबिंग, एम्प्लॉय वेलबिंग में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो एम्प्लॉय वेलबिंग इंडेक्स में इंडिया 2nd पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? टर्की की। एंड जापान यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे आता है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। फिर वर्ल्ड का पहला AI रोबोट CEO अपॉइंट किया गया, क्या नाम रहेगा उसका? मिका। राइट, MIKA, ये वर्ल्ड का पहला AI रोबोट CEO अपॉइंट किया गया है। देन अभी रिसेंटली उस कंट्री का नाम बताओ जिसको अभी एक नया आइलैंड मिला है। राइट, और ये नया आइलैंड कैसे आया? अंडर सी वॉल्केनो इरप्ट हुआ और उस इरप्शन की वजह से एक आइलैंड डेवलप हो गया जो कि कहाँ पर है? जापान में। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अभी IOC अवार्ड्स ओलंपिक कप 2023 टू टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। जो टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है इनको यहाँ पर अभी IOC अवार्ड्स ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया। राइट, तो 2023 का ओलंपिक कप से किसको सम्मानित किया गया? वो है टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। रीजन बीइंग कि जो ये आपका टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है ये आपके जो रिफ्यूजीज होते हैं उनको लेता है एंड उनकी हेल्प करता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। करेक्ट, उनको टाइकोंडो की मदद से यहाँ पर आगे इसके बारे में पेशेंस सिखाते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में स्किल्स डेवलप करते हैं, ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में, उनके ड्रीम्स को परस्यू करने की हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और इन्हीं को 2023 के ओलंपिक कप से सम्मानित किया गया। ये टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन 2015 में UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में फाउंड की गई थी बाय देयर प्रेसिडेंट जो कि हैं च्वांगॉन क्यो। करेक्ट, एंड ये जो एम रहेगा वो क्या होता है कि जो रिफ्यूजीज होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको टाइकोंडो सिखाने के लिए, उनकी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको ओलंपिक वैल्यू सिखाने के लिए, करेक्ट, उनको ड्रीम्स के लिए अपने वर्क कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे THF पार्टनर ऑफ द IOC रिफ्यूजी ओलंपिक टीम। जो 2016 में रियो ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, वहाँ पर आपके वर्ल्ड टाइकोंडो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस IOC रिफ्यूजी टीम। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे टाइकोंडो स्टैचू, इसको अनवेल किया गया था इन ओलंपिक म्यूजियम। कहाँ पर? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में। राइट,
और हम देख ही चुके हैं। आईओसी की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट थॉमस बैक, हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1894 में, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं AAPA। इनका एम रहेगा फॉर 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूसेज बाय 2030। तो AAPA क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस। इन्होंने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अडॉप्ट करेंगे 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज बाय 2030 अमंग 14 मेंबर एयरलाइंस। रीजन क्या है कि जो आपका ट्रेडिशनल हम एविएशन फ्यूल जो यूज करते हैं ना, वो काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट करता है इन्वायरमेंट में, राइट। तो अगर हम ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज करेंगे तो 80% तक का हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा इन फॉसिल बेस्ड जेट फ्यूल्स में। आपका जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा ना, 80% से हमें यहाँ पे उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, करेक्ट। और ये 2030 तक हम ये 5% का टारगेट को अचीव करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 से लेके 21 नवंबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल न्यूबॉर्न वीक। एंड इसका एम क्या रहेगा? ताकि अवेयरनेस क्रिएट कराना अबाउट द न्यूबॉर्न केयर, कि जो बच्चा होता है उसको बचपन में ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उसकी सर्वाइवल के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड उसी के लिए ये वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 15 से 21 नवंबर तक। फिर ये जो वीक होता है इसकी थीम क्या रहेगी? सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, करेक्ट। और ये न्यूबॉर्न नेशनल न्यूबॉर्न वीक 15 से 21 नवंबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू प्रमोट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल द डाइवर्स कल्चर्स एंड कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, राइट, डिफरेंट कल्चर्स को, एंड उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1997 में, और 16 नवंबर को हर साल हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 16 नवंबर को, मार्क करके चलेंगे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट ऑन डे विच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड देयर फंक्शन एज मॉरल वॉच डॉग। कि मतलब प्रेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सच सामने लाती है, और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए या फिर अगर हम बोलें बिजनेसमैन हो गए, इनको इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई थ्रेट ना दे सके टू रिपोर्ट एनी फॉल्स न्यूज़। इसीलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एज अ मॉरल वॉच डॉग का काम स्टार्ट किया था। एंड 16 नवंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रेस डे। यहीं पे थीम याद रखेंगे, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल प्रेस डे की, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड फिलॉसफी डे। ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd थर्सडे को ऑफ नवंबर मंथ। 3rd थर्सडे ऑफ द नवंबर मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फिलॉसफी डे। हर साल किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। और वर्ल्ड फिलॉसफी डे इस साल 2023 में कब था? इस साल 2023 में 16 नवंबर को था आपका 3rd थर्सडे ऑफ द नवंबर मंथ, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। पीएम मोदी 2 दिन की विजिट पे थे झारखंड में, जहां पर उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस को एड्रेस किया। देन धर्मेंद्र प्रधान ने को चेयर किया पहला ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीट, जो कि IIT गुजरात में हुई। पहला इंडसेक्स इन्वेस्टर्स मीट्स दिल्ली में हुई, एंड गुरुकुल इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया। देन उज्बेकिस्तान के समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में MOU साइन हुआ, ताकि एकेडमिक अलायंसेस को बढ़ावा दिया जा सके। देन क्लीन एनर्जी ओवरटेक्स जो फॉसिल फ्यूल, या फिर हम बोलें क्लीन एनर्जी सेक्टर में जो जॉब्स की डिमांड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा जॉब्स जनरेट हुई एज कम्पेयर टू द जॉब्स इन द फॉसिल फ्यूल सेक्टर, एज पर द ग्लोबल जॉब मार्केट रिपोर्ट रिलीज बाय IEA, करेक्ट। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से ये सेकेंड एडिशन था इस रिपोर्ट का। देन फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया UPI लाइट फीचर फॉर स्मॉल वैल्यूड डिजिटल पेमेंट्स, फेडरल बैंक के द्वारा। देन इनक्रेड होल्डिंग्स ये सेकेंड यूनिकॉर्न बन गया 2023 का। पहला यूनिकॉर्न कौन है? Zepto। नेक्स्ट इंडसिंड बैंक एंड सुजलॉन एनर्जी अमंग 9 फर्म्स, जिसको MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड किया गया। 15th एडिशन ऑफ फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स अभी प्रेजेंट किए गए। IOC अवार्ड्स ओलंपिक कप टू टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, मार्क करके चलेंगे। ओलंपिक कप 2023 से किसको सम्मानित किया गया? टाइकोंडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। देन AAPA इनका एम रहेगा फॉर 5% यूसेज ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बाय 2030। देन नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 से 21 नवंबर के बीच में। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 16 नवंबर को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।
नेक्स्ट आ जाता है एन ओपन डाटा प्लेटफॉर्म टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक ओपन डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टू मेक साइंटिफिक डाटा मोर असेसिबल? तो वो लॉन्च किया गया था IAEA के द्वारा। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा? वो है IAEA डाटा प्लेटफॉर्म। बेसिकली एम क्या है यहाँ पर? ताकि जो डाटा है ना वो बेटर प्रोवाइड कराया जा सके। डाटा बेटर प्रोवाइड कराया जाएगा तो जो रिजल्ट है, जो एनालिसिस होगा वो और अच्छे से हो सकेगा, राइट। उसको और अच्छे से एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका एनालिसिस कर पाएंगे। एंड जैसा है कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा रिलीज किया गया, तो जो मेन टॉपिक्स पे यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा वो क्या है? न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस एंड उसके वेरिफिकेशन एंड सेफ गार्डिंग के लिए। ठीक है। अगर IAEA की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? वो है राफेल मैरियानो ग्रॉसी। हेडक्वार्टर रहेगा वियना ऑस्ट्रिया में एंड इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया गया। यहीं पर अगर और कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एयरबस ने किस IIT के साथ टाई अप किया ताकि एरोस्पेस एजुकेशन पे वर्क किया जा सके? एरोस्पेस एजुकेशन पे वर्क किया जा सके, तो वो है IIT कानपुर। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ हरियाणा में अभी कितने PM श्री स्कूल्स को डेडिकेट किया जाएगा? तो 124 PM श्री स्कूल्स को यहाँ पे डेडिकेट किया जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में? चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट। और ये सरपास किसको करेंगे? हम सरपास कर देंगे जापान को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली USA टॉप पर है, फिर सेकेंड पे चाइना आ जाता है, राइट। और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में। ठीक है। और जो इसकी GDP होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन GDP होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की GDP ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी। Who was awarded with the first edition of Lifetime Disturbing the Peace Award? तो फर्स्ट एडिशन या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन था ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का। किसको सम्मानित किया गया? सलमान रुशिद को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से। ठीक है। फिर इसी को याद रखेंगे, ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था एंड मैनहट्टन न्यूयॉर्क USA में इनको इससे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। हम बात कर रहे हैं 37th नेशनल गेम्स की। कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे, राइट। हो चुके हैं ये एंड ये आपके 26 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक ये गेम्स चले। मेडल टैली में टॉप किस स्टेट ने किया? महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, 228 मेडल्स के साथ यहाँ पे टॉप किया, जिसमें से 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहीं पे महाराष्ट्र ने राजा भालांद्रा सिंह ट्रॉफी को भी जीत लिया है। करेक्ट। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का सेकंड पोजीशन, हरियाणा थर्ड, मध्य प्रदेश थर्ड, फोर्थ एंड केरला आपके फिफ्थ पोजीशन पे आया। यहीं पे अगर मैं बात करूं बेस्ट मेल एथलीट की, वो कौन रहे? वो है श्रीहरि नटराज। करेक्ट। ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कौन से स्पोर्ट खेलते हैं ये स्विमिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 10 मेडल यहाँ पर जीते। यहीं पे बेस्ट फीमेल एथलीट की अगर मैं बात करूं, वो कौन रहेंगी? वो है जिम्नास्ट, जो है संयुक्ता प्रासेन काली, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जिम्नास्ट है। ठीक है। और इन्हीं के साथ एक और नाम याद रखेंगे, प्राणति नायक। ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी 5 मेडल जीते हैं और इन दोनों ने 5-5 मेडल जीते इन स्पोर्ट्स। और याद रखेंगे दोनों जिम्नास्ट हैं एंड दोनों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता और ये दोनों बेस्ट फीमेल एथलीट रहेंगी यहाँ की। करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं
ऑब्यूटरी की बात करें तो अभी सहारा इंडिया परिवार के जो फाउंडर एंड चेयरमैन थे सुब्रता रॉय, उनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी होती थी, लेकिन फिर इसके डाउनफॉल के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा भी यहाँ पर डूबा, लेकिन इनका निधन हो गया भी एट द एज ऑफ 75 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। एंड सहारा ग्रुप के ये चेयरमैन थे एंड फाउंडर थे। नेक्स्ट याद रखेंगे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, दैट इन्होंने अभी रिसेंटली ग्रांट किया जियो को एंड वनवेब को लाइसेंस, ताकि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया ना इनको, उस लाइसेंस का नाम रहेगा GMPCS, ये लाइसेंस का नाम रहेगा। करेक्ट। ये क्या है? ग्लोबल GMPCS है आपका ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट, राइट। ये आपका लाइसेंस है, इन दोनों को प्रोवाइड कराया गया ताकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकें यूजिंग सैटेलाइट कनेक्शन। ठीक है, जियो को और वनवेब को। वनवेब की बात करें तो वनवेब ये यूके बेस्ड कंपनी है एंड ये आपका क्या है, सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन सेटअप कर रही है अराउंड द ग्लोब, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड करा सके सैटेलाइट की मदद से। स्मॉल सैटेलाइट्स रहेंगी, जैसे आपका स्टारलिंक है, वो क्या काम कर रहा है, वो भी ये काम कर रहा है, एक कॉन्स्टलेशन बनाना है अर्थ के चारों तरफ, ताकि उसकी मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, जैसे आप डिश टीवी की मदद से अपने टीवी के चैनल देखते हैं ना डिश पे, सिमिलरली आपका इंटरनेट भी ऐसे ही प्रोवाइड कराएगा। एक डिश आपकी छत पे लग जाएगी एंड सैटेलाइट की मदद से आप सीधा इंटरनेट कनेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं CFDA। CFDA क्या होता है? काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से अभी किनको सम्मानित किया गया? वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स एक टेनिस प्लेयर है, राइट। ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं, करेक्ट। एंड ये वो पहली एथलीट बनी है, फर्स्ट एथलीट जिनको सम्मानित किया गया है CFDA अवार्ड से, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका फैशन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये वो पहली एथलीट बनी। और याद रखेंगे इनको ये अवार्ड किम कार्डिशन से सम्मानित किया गया था, जिनको 2022 में CFDA अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ठीक, जैसे आपके ऑस्कर्स होते हैं तो फैशन इंडस्ट्री का जो ऑस्कर अवार्ड माना जाता है वो CFDA अवार्ड ही माना जाता है। एंड इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम वीमेन सिंगल टाइटल जीते हैं एंड 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी सेरेना विलियम्स जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका होमवर्क सेक्शन। पहला, सिल्कियारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट। और अब ये न्यूज में क्यों थी ये भी बताओ। दूसरा, एज पर द UN रिपोर्ट विच रीजन वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी? और तीसरा, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन ये एसोसिएटेड है किस कंट्री से और ये किस लिए ये मिशन है? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ हर बच्चा यहाँ पे नीचे आंसर कमेंट करें एंड उसकी रिवीजन होगी, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर वो ये सर्च करेगा क्वेश्चंस को एंड फिर नीचे कमेंट करेगा, राइट। ऑल्सो अगर आप काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी जाके हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाइए नीचे, करेक्ट। एंड अगर आप नए हैं बच्चे और हमारी वीडियोस आज पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी के लिए भी सजेशन कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बताइए अबाउट दिस इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.